Just a minute. Am I audible to you? Yeah, loud and clear. Okay. So, formally, I welcome you to this show. And first of all, heartiest congratulations from my side and my audience to you for clearing this prestigious exam. Thank you so And much, man. Thank you. we wish you all the luck. I mean, मेरा ये मानना है कि आपका आगे आने वाला जर्नी भी और ज़्यादा exciting होने वाला है. Exciting. For when you go into the academy, right? And so let's start with all your strategies and how you prepared well for this exam. But before that, I'll just like you to ask a basic question कि जैसे हर कोई पूछता है कि clear करने के बाद feeling कैसी आती है सबसे पहला. अरे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बोलते ना एक अलग लेवल ऑफ एक्सटेसी है. एंड इट्स लाइक अ हाई जो मतलब बोलते हैं ना कि चाह के भी फेड नहीं हो रहा है. मतलब अभी भी वही फीलिंग आ रही है यार. वो कभी भी याद आता है वो दिन जब वो मोमेंट जब वो पीडीएफ में नाम देखा था. तो थिंग्स आर मेलोइंग डाउन बट इट्स नॉट लाइक it's calming down, but then अभी भी मतलब एक बहुत अच्छा एसेंस है. And it has been a very humbling journey since then as well. इतने लोग well wishers आते हैं, बात करते हैं, बहुत एस्पिरेंट्स टिप्स मांगते हैं, तो अचानक से start feeling important. It feels like your words have a lot of value. So on one hand, it's very humbling and inspiring, and on the other hand, you have to be very careful with whatever you talk and speak about. Yes. Now you have now you have a position of responsibility with all that you speak, right? Great. True. Very true. Great. So before moving forward, just I would like you to tell कि आपका background क्या है अभी at present, where you come from and how you started, how you decided that कि मेरे को UPSC ही करना है at the end of 4 years of the college. Okay, so I was born in Raxaul, Bihar. My native place is in Balia in Eastern UP. Okay. And I've done my schooling from Kolkata, and I've done my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani in 20. And it was in BITS Pilani itself that I began thinking about this examination. एक ऐसा हुआ कि I come from Kolkata, a metropolitan city, best facilities सब कुछ है. Then I go to Pilani, and especially the outskirts. Campus के अंदर तो facilities मिलती हैं, but outskirts में क्या होता है कि जो लोकल विलेजेस हैं कैंपस के बाहर उनमें उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. तो व्हेन आई जॉइंड एनएसएस एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दीज प्लेसेस, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आई कैन डू अ लॉट फॉर दीज पीपल by becoming a civil servant or by becoming an administrator than I could have ever done becoming an engineer. And this is actually what like pushed me towards preparing for this examination. Okay, तो when you went to Pilani, उस तभी ही decide कर लिया था कि अब ये करना है. So you started preparing वहीं जहाँ college में ही you started preparing कि fourth year के बाद you started from scratch कि अब let's start this type से. नहीं, actually it was in my second year or in the third year that I actually decided कि नहीं यही करना है. Formal preparation जो full fledged जो basic books हैं वो होता है that actually began at the end of around the end of 2017. That means in my final year itself. But ताकि just graduation के बाद मैंने अपना पहला attempt दे दिया था. Okay, great. So when you decided कि अब अब preparation start करनी है, so what was your very first step कि अब कहाँ से करें, क्योंकि जनरली बच्चों का रहता है कि अब दिल्ली जाना है बस और वहाँ जाके सारा कोचिंग एक ज्वाइन करके मटेरियल ले लेना है. तो what was your point of view कि पहले कहाँ से start किया from the very scratch? यार सबसे पहली चीज that I started was doing was कि टॉपर्स जो होते थे उनके वीडियोस और स्ट्रेटजीज और उनके ब्लॉग्स पढ़ना. तो उससे बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करो, क्या क्या सोर्सेज रखो, एक बुक लिस्ट रखो, दिल्ली जाना जरूरी है नहीं जरूरी है, ऑप्शनल क्या रखो. तो मतलब यही सब चीज उन्हीं के उससे पता चली. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड एंड आई एक्चुअली रिमेंबर लाइक गिविंग गुड 2-3 गुड वीक्स टू दिस. मतलब अलग अलग टॉपर्स के वीडियो सुनना, ब्लॉग्स पढ़ना, एक बुक लिस्ट टाइप का बनाना, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दिस इज समथिंग दैट आई डिड. So एक बेसिक जॉट डाउन आपने कर लिया कि ये चीज मेरे को पढ़नी है, इस टाइप से थोड़ा अगले 1-2 साल का रूटीन रहने वाला है, इस टाइप से you had a basic framework in your mind. True, very true, very true. And did you have any guidance from your seniors जिन्होंने पहले किया था, या फिर you dealt with it all alone? मतलब नहीं, like BITS Pilani has had an history of producing very top rankers in these examinations. Other than that, we were in very good touch with our seniors. Like there are many seniors. Topper talks में अनुदीप सर आते थे और अनमोल सर से बात होती थी, and Anmol Sher Singh Bedi sir. And then I was in good contact with Manish Gurwani sir, 2018 batch IAS, and Ashutosh KR Pandey sir, IRS 2019 or 2020 batch. So मतलब there was an environment, there were seniors to guide us, there were people talking around. So मतलब this was a luxury that was afforded to me.
ओके सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल कि जैसे कुछ एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि यू नो दे डोंट हैव एनीवन टू गाइड देम, और जैसे कोई होता नहीं है गाइडेंस ऊपर से, सो टॉपर्स की वीडियोस वो भी देखते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है कि हम अपने लिए हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजीज, वो जो टॉपर के लिए काम किया जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी काम करे। सो हाउ टू अडेप्ट ऑल दोज एंड यू नो ट्राई टू बिल्ड अ मेंटल फ्रेमवर्क कि हाँ ऐसे जाना है। जो एक्चुअली क्या होता है कभी सेल्फ डाउट भी आ जाता है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई बताने वाला होता नहीं है और कोई चेक करने वाला भी नहीं होता है। सो इस चीज को कैसे हैंडल करना है मतलब प्रिपरेशन में? सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि सबके लिए थिंग्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट? तो व्हाट क्लिक फॉर मी माइट नॉट क्लिक फॉर समवन एल्स। तो इट्स लाइक कि सुनो सबका, करो खुद का। तो वही है कि बहुत एक टॉपर का नहीं हो रहा है, दो टॉपर का नहीं है, थॉर टॉपर्स का देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, गेट अ बुक लिस्ट, जैसे स्टार्ट करो, लाइक यू डू समथिंग ऑन इट, किक स्टार्ट समथिंग, एंड ग्रेजुअली इफ यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, आप ग्रेजुअली आप चेंजेस करते रहिए। मतलब ये है कि प्लान्स को रिजिड नहीं रखना है कि हमें ये इस टॉपर ने ये बोला है तो यही ही करना है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर लिखना है, टॉपर को पेपर नहीं लिखना है। टॉपर लिख के निकल चुका है। एंड अबाउट सोर्सेज, तो जनरली टॉपर्स वुड नॉट, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर वुड नॉट रिकमेंड सोर्सेज जो मतलब कोई बहुत कंट्रोवर्शियल हो या फिर इसका यूटिलिटी कम। तो एक जनरल कंसेंसस होती है एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत बेसिक बुक्स में, तो वो आप फॉलो करिए, वो स्टार्ट करिए, एंड ग्रेजुअली यू, ये बोलते हैं ना कि कीप एम्पिंग योर स्ट्रेटजी अप। तो यही करना होता है मोस्टली, इससे काम हो जाना चाहिए। सो बेसिकली थोड़ा एक बेसिक फ्रेमवर्क बना के उसके ऊपर यू हैव टू बिल्ड इट अप कि क्या चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत से ही एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बन गया है और वो 1-1.5 साल तक फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। The only perfect strategy is there's no perfect strategy. ग्रेट 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 ग्रेट। तो एक चीज और मेरे को इसमें पूछना था कि जैसे ओवर द जर्नी ऑफ दीज 2 years बहुत ही लेंदी जर्नी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और स्पेशली दोज हु आर कट ऑफ फ्रॉम हमारे सोशल मीडिया, फैमिली जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब उतनी ही कंसिस्टेंसी जिससे स्टार्ट किया था उतनी ही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना अगले 2 साल के लिए। So what should aspirants do to you know be consistent with their studies? मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, हमको उतना देना है because this paper demands that much of dedication. तो वो कैसे आपने डील किया अपने साथ? सी मेरे केस में ऐसा था कि आई यूज्ड टू गेट डीमोटिवेटेड, स्पेशली अगर जब लगातार 3 बार मेंस क्लियर ना हो। बट देन वही था कि आई न्यू दैट मेरे को बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो एमिनेम का गाना है ना, यू ओनली नीड वन शॉट, वन Yeah. अपॉर्चुनिटी टू सीज द मोमेंट, लूज योरसेल्फ। तो Yes. उसमें बोलता वही मैंने फॉलो किया था कि मुझे पता था कि आई माइट फेल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, बट मुझे एक चाहिए था जिसमें मुझे क्लियर करना, जिसमें मेरा क्लियर होगा। तो पीपल नीड टू टेल देमसेल्व्स कि सक्सीड करने के लिए बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, फेल करने के लिए बहुत सारे, ठीक है ना? प्लस चीज ये है कि यू मस्ट पीपल मस्ट आस्क देमसेल्फ कि व्हाई आर दे डूइंग दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबका अपना व्हाई है। Mhm. कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाट इज योर व्हाई, एंड कई बार दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अदर देन दैट, जनरल में पीपल स्टे आउटसाइड, पीपल या फिर पीपल कट देमसेल्फ ऑल ऑफ। तो मैंने पर्सनली कट ऑफ नहीं किया था। मैं भी अपने दोस्तों से बात करता था, वीडियो गेम्स खेलता था, फेसबुक भी चलाता था बीच बीच में। बट पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, और जब फ्री हो गया, टारगेट्स कंप्लीट हो गए जो मेरे डेली टारगेट्स या वीकली टारगेट्स थे, उसके बाद मैं आराम से चिल करता था। तो इट्स लाइक बी इन टच विद द पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, कुछ एक्टिविटी करो। कुछ अगर आप कुछ हॉबी लेते हो तो लाइक यू कैन गिव 1.5 hours अ डे फॉर दैट, इट्स नो बिग डील अबाउट दैट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम जीने मरने की चीज हो गई, इट्स जस्ट अनदर एग्जाम। थोड़ा प्रेस्टीज ज्यादा इन्वॉल्व है, थोड़ा टैक्सिंग ज्यादा है ये प्रोसेस, बस स्टेक्स हायर है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड ट्रीट इट लाइक दैट। सो कभी ऐसे दिमाग में आया कि यार अभी 3 मेंस नहीं हुआ है तो अब कोई और पेपर भी दे देते हैं, मतलब स्टेट पीएससी दे देते हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स के मन में ये बैकअप ऑप्शन वाला प्लान आता है कि प्लान बी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल रिकमेंड कि प्लान बी होना चाहिए इस एग्जाम में। सो डिड यू हैव अ प्लान बी? आई डिड हैव अ प्लान बी, आई एम नॉट गोना लाई अबाउट इट। तो देखो, अबाउट देयर इज समथिंग आई विल टेल यू अबाउट प्लान बी। अगर आपने वो मूवी देखी ना, टीवी सीरीज देखी ना, एस्पिरेंट्स, तो यस उसमें यस। बोला गया कि प्लान बी का जीवन का पर्पस होता है आपके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाना। प्रॉब्लम तब होने लगता है जब हम प्लान बी को अपना प्लान ए बनाते हैं, प्लान ए को प्लान बी बना देते हैं। यस तो यस। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। मैंने शायद यूपीएससी के पहले गवर्नमेंट जॉब्स वाले सेक्टर में मैंने 14, 15, 13, 14 एग्जाम आराम से दिए, मेरा एक क्लियर नहीं हुआ था। मेरे डायरेक्टली यूपीएससी क्लियर हुआ है। तो मैं क्या ग्रेट। करता था कि बहुत ज्यादा हद तक सिलेबस ओवरलैप करता था, चले जाता था एग्जाम देने।
क्लियर होता था नहीं होता था, अब क्या कर सकते हैं उस पर। बट यही है कि इट इज ऑल राइट टू हैव एन बैकअप, बट उसको बैकअप की तरह ही रहने दो, फोकस ऑन द मेन थिंग्स फर्स्ट। हुँ। तो मतलब जैसे ये आपने बोला कि ओवरलैप करते हैं, जो सिलेबस ओवरलैप करता है, तो कभी ऐसा किया कि जैसे मान लीजिए आरबीआई ग्रेड ए का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली 1 हफ्ता उसी के सिलेबस को पढ़ा और फिर एग्ज़ाम दिया, इस टाइप से कर सकते हैं कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल ओके, 2019 में इनफैक्ट मैं आरबीआई के इंटरव्यू में, मेरा वो इंटरव्यू आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यूज। तो जब आरबीआई का वो फेज चल रहा था, तब उस समय यूपीएससी का वो नहीं था, तो आई कुड गिव अ कपल ऑफ वीक्स टू आरबीआई एज वेल, एंड बहुत ज्यादा सिंस ओवरलैप अच्छा खासा था, स्पेशली विद दैट ईएसआई वाला पेपर। यस। तो टू अ वेरी फेयर एक्सटेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स को थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिल जाता है उस पेपर में। एंड प्लस सच में होता था। अगर आप इंटरव्यू में हैं, तो वहाँ पे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको लाइव वैसे ही थोड़ा-सा एडिशनल बेनिफिट करता ही है व्हेन यू आर गिविंग एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यूज़। तो वो थोड़ा एंग्जायटी वाला भी रिलीज़ हो जाता है प्रेशर कि आप इतने दिए हुए हैं ऑलरेडी इंटरव्यूज़, तो अब इसमें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे वैसा। ग्रेट। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। या सो अब थोड़ा बहुत हम आपके प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि अभी जैसे ये एग्जाम जो है वो 3 पार्ट में ऑब्वियसली डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इसका जो तैयारी है वो फोकस रह के किसी एक पार्ट पे पहले करना चाहिए कि तीनों को एक साथ लेके बैलेंस करके चलना चाहिए और फिर आखिरी में किसी एक को डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, मैंने हमेशा से प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड करती है। मैंने कभी भी लक्ष्मीकांत को एक बार प्रीलिम्स की नजर से, एक बार मेंस की नजर से नहीं पढ़ा। ओके। मैं जब भी पढ़ता था, उसको कंटेंट या नॉलेज की नजर से पढ़ता था कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी ओवर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वही बोलूंगा कि बहुत हद तक इन साइलोज प्रिपेयर ना करके इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखिए। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो तो आप प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो प्रीलिम्स एंड मेन के बीच में पीरियड है, उसमें प्रिपेयर कर सकते हो। पैरेलली अपना ऑप्शनल देखते रहिए, एंड वही जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। जब आपको लगेगा कि यू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ रिवीजन ऑन योर हैंड्स, तो आप उसके बाद मॉक्स दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली फॉलो। ओके, ओके। एंड व्हाट वर द बेसिक रिसोर्सेज जो आपने हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो किए? मोस्टली आई रेफर टू बेसिक बुक्स, जैसे एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, एंड आई वाज वेरी क्लियर इन लिमिटिंग द नंबर ऑफ सोर्सेज आई फॉलो। मतलब कि मैंने खुद को ये बता दिया था कि एक सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा बुक्स नहीं रखनी है अदर देन माय ऑप्शनल। ठीक है, ऑल्दो ऑप्शनल में मैंने एक भी बुक नहीं रखी, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैंने जीएस बोला था, हिस्ट्री के लिए अगर एनसीईआरटी देख रहे हैं तो एनसीईआरटी प्लस 1 बुक, ज्योग्राफी के लिए 1 बुक प्लस 1 अदर सोर्स, मतलब नॉट मोर देन 2 सोर्सेज पर सब्जेक्ट। इन्हीं को रखना है, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को रिवाइज करना है, जब टाइम आए तो मॉक्स दे देना है। तो इनके लिए आपने जैसे लक्ष्मीकांत है, बल्कि बुक है बहुत, आखिरी में रिवीजन करना थोड़ा प्रॉब्लमाटिक हो जाता है अगर हम उसको 3-4 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करें। सो डिड यू मेक अ शॉर्ट नोट टाइप समरी उसका कि वो बुक से ही यू अंडरलाइन्ड एंड रिवाइज्ड एवरीथिंग? I was more of an underline wala guy compared to a over a note making guy. So starting में see, it is a bulky book. In fact, most of the books will be like 400-500 pages इस type के आसपास के। बट पॉइंट ये है कि जब आप एक बार पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, देन उसको हाईलाइट करोगे, देन स्पेशल हाईलाइट करोगे, तो ग्रेजुअली यू विल हैव कीवर्ड्स, वर्ड्स जिस पे सीधा आपकी नजर पड़ जाती है, एंड विद सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ रिविजंस योर टाइम टू रिवाइज आल्सो कम्स डाउन ड्रास्टिकली। एक बिगिनर्स माइट टेक 30 days टू रिवाइज लक्ष्मीकांत। मुझे अपने फाइनल लेटर में 3 दिन लगे थे लक्ष्मीकांत रिवाइज करने में, और भी 3 दिन ऐसे बिकॉज मैं 3-3 4-4 घंटे ही देता था लक्ष्मीकांत को तब। ओके, तो ग्रेजुअली टाइम कम हो जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है, बट इट्स अगेन इट्स अप टू यू। समवन वांट्स टू रिवाइज फ्रॉम मेकिंग नोट्स, वेल एंड गुड, कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। ओके, ओके। एंड कितनी बार आपने अपने दिमाग में रखा था कि इतनी बार रिवीजन पूरे सिलेबस का तो करना ही है, इसके बिना वो नहीं हो सकता? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट जस्ट द लास्ट अटेम्प्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कितनी बार पूरा कोर्स पढ़ रखा है? कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं था मेरे दिमाग में कि इतना नंबर रिविजन करना ही है, बट लक्ष्मीकांत 8-9 बार तो मिनिमम पढ़ ली होगी 4 साल में, मतलब एटलीस्ट 8-9 बार तो देखी ही होगी। और मोस्टली यही इसी टाइप पे चला, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा साइकिल 4-4.5 साल का था, बट ये होगा कि रिविजन इज की, मतलब हम्म। इतना करो कि यू बिकम कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट, यू आर कंफर्टेबली टैकलिंग क्वेश्चंस ऑन दैट सब्जेक्ट। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ था कि 3-4 बार रिवाइज करने से यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली गेट थ्रू यूपीएससी। तो मैं सिंस यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कितनी बार किया? टू बी वेरी फ्रैंक। काफी काफी बार किया था, काफी बार किया था, मेरा रिवीजन काफी था, बिकॉज नंबर 1 मैं बुक्स के बेसिस पे ही जाता था, मैं कोचिंग नोट का कुछ सीन नहीं था मेरा।
सेकंड ये था कि मेरे 4-5 अटेम्प्ट्स भी हो गए थे, तो मतलब कॉन्सिक्यूटिवली मेरे रिविजन्स काफी ज्यादा हो गए थे। आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर इन माय हेड, बट दे मतलब एटलीस्ट 8-9 बार तो मिनिमम होंगे, गिवन द फैक्ट कि 4 अटेम्प्ट में कम से कम 2-2 बार तो लक्ष्मीकांत पढ़ा ही होगा मिनिमम। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ठीक है ना, तो इट इनफैक्ट माइट बी इवन अ लिटिल मोर देन दैट एज वेल, मोर बट देन दैट, डेफिनेटली यस। नॉट लेस देन दैट। क्या तो मतलब एस्पिरेंट्स को जनरली इतना दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 3-4 रिवीजन में ही हो जाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है 3-4 बार रिवाइज कर लिया अब भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे मेरे से, टॉपर्स के तो बन जा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं बन रहे। तो बिल्कुल होता है। ये मतलब मल्टीपल टाइम रिविजन्स चाहिए डेफिनेटली आपको रिकॉल करने के लिए इस पेपर में। ग्रेट। ट्रू ट्रू, और वेरी ट्रू। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आपका फोर्थ मतलब 4 साल की जर्नी थी आपकी ये, राइट? तो जी। पहले अटेम्प्ट्स में ऐसी क्या गलती हुई कि मेंस नहीं हो रहा था, या फिर प्रीलिम्स हो जा रहा था, मेंस नहीं हो रहा था? क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रीलिम्स ही बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है। सो आपने प्रीलिम्स कैसे इजीली टैकल किया? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। और उसके बाद मेंस में ऐसा क्या था जो आप गलती कर रहे थे और बाद में आपने वो ठीक किया? ओके, तो जो सबसे, मैं इस I'll answer this in a different way कि what changes, what mistakes have to like made me take 3 or 4 years to clear this exam, 4 years, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा ये था कि ऑप्शनल मैंने बहुत गलत चूज कर लिया था स्टार्टिंग में, एंड बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे अपना ऑप्शनल ठीक करना पड़ेगा, तब तक मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा जा चुका था, 2 अटेम्प्ट के आसपास हो चुके थे, तीसरा सर पे था। तो चूज योर ऑप्शनल्स वेरी वाइजली। सेकंड, स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, ग्रेजुअली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हुई, बट तब तक थोड़ा लेट हो गया था, बट फाइनली इट एडेड अप। तो आंसर राइटिंग करिए, देयर इज एन इनर्शिया टू आंसर राइटिंग, बट बोलते हैं ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाइए, थोड़ा फोर्स डालिए तभी तो इनर्शिया हटेगा। एंड थर्ड इज की नॉट रेफरिंग टॉपर कॉपीज, स्पेशली टॉपर कॉपीज में इतना मैं हर जगह फोकस करता हूँ, बिकॉज एक सिटिंग इनविजिबल गोल्ड माइन है, लिटरली यू कैन, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन के वेज मिल जाएंगे। तो these were the three major. Other than that, exam centered कुछ issues होते थे, for example not completing paper, not drawing enough diagrams and putting in keywords, ये सब exam centered issues. So these were the major issues that I felt कि were stopping me from clearing the mains in my previous attempts. ओके। और जैसे प्रीलिम्स आपने हर बार क्लियर किया, तो प्रीलिम्स का ऐसा क्या आपने अलग किया कि हर बार ही यू गॉट सेलेक्टेड? Uh, मैंने कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं किया वैसे, बस वही बेसिक चीजें की हैं कि बेसिक बुक्स और रिसोर्सेज पढ़ो, करंट अफेयर्स देखते रहो, इनको रिवाइज करो फ्रीक्वेंटली, मॉक्स दो, एंड फाइनली अपने मॉक्स को एनालाइज करो, एंड जो गलतियां हैं उनको वापस रीअटेम्प्ट करो। तो यही यही साइकिल होता था मेरा। ओके ओके। तो लगभग कितने जनरली मॉक्स देने चाहिए टू बी कंफर्टेबल प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? आपने कितने दिए थे एज हर? मेनी एज पॉसिबल। मैं अपने फोर्थ अटेम्प्ट में अराउंड 50 प्लस मॉक्स दिए थे मैंने, जिसमें से कपल ऑफ देम वर सेक्शनल्स एंड कपल ऑफ देम वर फुल लेंथ्स, बट मुझे मॉक्स देने बहुत मजा आता था, बिकॉज आई यूज्ड टू यूज माय मॉक्स एज अ वेरी गुड रेफरेंस या फिर स्टडी मटेरियल, मॉक्स को अपने स्टडी मटेरियल की तरह भी यूज करता था। तो 50 के ओके। मॉक्स मैंने दिए थे, तो द तो मोर द मेरियर। ग्रेट ग्रेट। तो उन मॉक्स को जैसे आप देते थे, तो फिर मॉक्स के जो एनालिसिस पार्ट होता है, उसमें जो जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया फॉर एग्जांपल, या आपको नहीं आइडिया था उसका, तो वो जो पीछे उसका थ्योरी लिखा रहता है पर हर क्वेश्चन का, सो डू यू रेफर टू इट मल्टीपल टाइम्स? उसका बार बार रिवीजन होता आप करते थे कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपने देख लिया कि क्यों गलत हुआ, ये बस क्वेश्चन इस वजह से था, इसमें ये थ्योरी था, तो बस एक बार देख लिया हो गया, कि बार बार उसका मल्टीपल रिवीजन आपने किया हर मॉक का? नहीं, मैं मॉक्स पे मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाता था, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मॉक्स था, टाइम उतना नहीं होता था। मैं ये करता था कि मान लो मैंने आज मॉक दिया, अपने पेपर करेक्ट किया, तो मेरे क्वेश्चन नंबर 7 और 9 गलत हुए, ठीक है, तो मैं इनको मार्क करता था, इनके सॉल्यूशंस पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद जब ऐसे 5-6 मॉक्स दे देता था, तो जब मेरे पास एक डिसेंट बंच ऑफ क्वेश्चन आते थे, तो जो जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, इस बार मैं उन्हीं को सॉल्व करता था विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। और दूसरी बार जब करोगे आप सॉल्यूशन पढ़ के, यू हैव समथिंग, सम सर्टेन थिंग्स इन योर हेड, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। ओके ओके। क्योंकि एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर वो जो पीछे थ्योरी दी रहती है हर क्वेश्चन के एंड में, वो बहुत ही बल्की रहती है। अब हम हर पूरा पूरा अगर मॉक रिवाइज करेंगे तो हमारा पूरा टाइम उसी में ही चला जाता है, पूरा पूरा दिन हम 2 ही मॉक्स करने में निकल जाता है। तो हाउ डू वी टैकल दिस? ओके, सो मतलब यही इनफैक्ट कोई 2 मॉक्स अ डे भी लगा रहा है, तो 30 डेज में इट्स अराउंड 60 मॉक्स, तो नॉट अ बिग डील, कर सकता है। बट अगेन इफ यू थिंक ये टाइम इज नॉट इन योर फेवर, तो आप क्या कर लो कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके सॉल्यूशंस देखिए, सही वाले का तो पता है चलो।
रिकमेंडेड ये भी रहेगा, सही का गलत भी सोल्यूशन देख लो, बट कुछ नहीं, फास्ट रीडिंग करो, बिकॉज बहुत चीज आपने पढ़ी होती है जीवन में, तो आप फास्ट रीडिंग करो। हम्म। और जो जिसको गलत किया उसको थोड़ा डिटेल में आके पढ़ लो, और फिर बाद में आके रीअटेम्प्ट कर लो कुछ दिनों के बाद। तो जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसके आप कुछ कहीं साइड में लिखते थे कि ये पर्टिकुलर चीज गलत हुआ है मेरा, या ये पर्टिकुलर कंसेप्ट गलत हुआ है, तो उसका आप कोई नोट बनाते थे कि यू जस्ट रिवाइज द मॉक्स, वही जो नहीं, गलत? मैं क्वेश्चन के साइड में एक बबल बना देता था, कि जिससे कि ये नोटिस रिमार्क हो जाए कि क्वेश्चन मैंने गलत किया, तो मैं ओके उसी को आके रिवाइज कर लूंगा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कितना डेडिकेटेड टाइम सिर्फ प्रीलिम्स को ही दिया, मतलब जैसे होता है कि अभी जून में आने वाला एग्जाम, तो अब से सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ेंगे, मेंस का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ था? हाँ, तो अगर जून लेट्स से अगर 28 मई को प्रीलिम्स है जो कि 2023 में होने वाला है, तो एटलीस्ट मार्च अप्रैल में ये 3 मंथ तो डेडिकेटेड देना ही है प्रीलिम्स को। किसी को लगता है कि उसका जीएसएन ऑप्शनल फरवरी के पहले ही बहुत पहले खत्म हो गया, तो ही कैन प्रीपोन दिस एक्सक्लूसिव प्री वाला पीरियड बैक बाय कपल ऑफ वीक्स। ओके। तो जैसे कि ये 3 महीने पहले जो प्रीलिम्स का स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है, उसमें कुछ अलग आप करते हो कि मतलब सिर्फ मॉक सॉल्व किए, मॉक्स को रिवाइज किया और बेसिक जो जैसे लक्ष्मीकांत या बुक्स हैं उसको रिवाइज किया, दैट इज द? बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके बहुत लोग ओके। क्या करते हैं कि कोई कंपाइलेशन हो रहा है करंट अफेयर्स का, वो जो आता है प्री के पहले, यस वो यस। देख ले, तो दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन योर डेली शेड्यूल, नॉट ओके एन ओके इश्यू। ओके। सो करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिक अगर बात करें, सो डिड यू लाइक मेक नोट्स फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर या फिर रेफर टू द मंथली कंपाइलेशंस ओनली? I wasn't a fan of making notes, especially for my GS optional के मैंने बनाए थे। Also, being an engineer, I am a little bit lazy, तो मैं बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर्स भी नहीं पढ़ पाता था, बट ये इंश्योर करता कि जब भी पढ़ पाऊँ उसको अच्छे से पढ़ लूँ, समझ लूँ। एंड आइडियली आई वुड रिकमेंड एक अच्छा न्यूज़पेपर कोई भी, एंड वन गुड करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, दिस शुड गो हैंड इन हैंड। Okay. And aspirants, they don't need to make notes for the compilation. जो compilation already note form में रहते ही हैं mostly. इट्स अप टू यू। मैं क्या करता हूँ, एक पीडीएफ हाइलाइटर करके कोई होता है, तो मैं उससे हम्म। हाईलाइट कर लेता था पीडीएफ में। फिर कई बार टाइम कम होता था तो वो भी नहीं करता था, बट देन इट्स अप टू एस्पिरेंट्स, लाइक बोलते हैं ना कि सुनो सबका करो खुद का। Yes कोई yes yes. कंफर्टेबल है नोट्स बनाने तो बिल्कुल बनाइए, आपकी मर्जी। Yes definitely. और आप मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी फैन हो कि यू आर मोर ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी एंड डिजिटल गाय, की मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ होगा? हार्ड नहीं नहीं, कॉपी? आई एम मोर ऑफ अ हार्ड कॉपी, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ओके पेन पेपर वाला। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, मेंस का थोड़ा बात करते हैं कि मेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जीएस 1 2 3, एंड उससे भी पहले एक चीज़ मेरे को और पूछना है जो बाकी लोग शायद नहीं पूछ पाते हैं, कि जो क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं, पार्ट ए पार्ट बी वाले, उसके लिए आपने कुछ अलग किया था, मतलब कुछ प्रिपरेशन था कि जस्ट यू वेंट देयर एंड वो बस लिख के हो गया? क्योंकि काफ़ी लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम रहता है। बस वो मतलब क्या, अगर किसी को इश्यू हो रही है तो लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो उस पे, ओके एंड उन्हीं को सॉल्व कर लो फॉर प्रैक्टिस। एंड जिस दिन सुबह एग्जाम देने आना है उस दिन सुबह का कोई लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर देख लो, दैट शुड डू। ओके, दैट्स सफिशिएंट। उसको कोई कोई डेडिकेटेड मतलब दिन देने की ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत ऊपर से हो जाएगा। ग्रेट। अब मेंस के अगर हम बात करें, तो आपका जीएस 1 2 3 4, ये जो 4 हैं, प्लस ऑप्शनल का हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, तो ये जो जीएस पेपर्स हैं, इनका आपका क्या स्ट्रैटेजी था? व्हाट डिफरेंट थिंग दैट यू फॉलोड स्पेशली विद द आंसर राइटिंग पार्ट? तो मतलब यही था कि सोर्सेज वही हैं, बहुत हद तक ओवरलैप करते हैं प्री से, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके लिए कुछ अलग सोर्सेज रखने पड़ते हैं, एंड यही इनको भी रिवाइज करो, एंड राइट एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल, रीड टॉपर्स कॉपीज, एंड लाइक कुछ डेटा वेटा मिलते रहता है, उसको इसको स्प्रिंकलिंग करना होता है, तो यू गेट दिस आइडिया व्हेन यू रीड योर टॉपर्स कॉपी। एंड फिर मॉक्स दीजिए, मॉक्स को एनालाइज करिए, स्पेशली द कमेंट दैट हैव बीन गिवन ऑन दिस। डू नॉट टेक टू हार्ट योर मार्क्स, बहुत हाई बहुत लो आ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट एक एनालिसिस होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, यही चीज है। ओके। तो जैसे आपके शुरुआत में जब आपने पहला अपना मॉक दिया जीएस पेपर का, तो आपके हाउ हाउ मच डिड यू स्कोर, और वहाँ से कितना इम्प्रूवमेंट आया फाइनल स्कोर्स में? मैंने बहुत मॉक्स नहीं दिए थे, एक एक के दो दो ही दिए थे, तो अराउंड इट ओके वाज लाइक कि 85 इन 90 के आसपास ही मिलता था मुझे, ओके प्रॉब्ली इवन कपल ऑफ मार्क्स अप एंड डाउन, तो इसी रेंज में रहता था मोस्टली। ओके। क्योंकि बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार 40 नंबर आए हैं अब लाने 100 देखो, के अगर ऊपर। अगर 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 40 आ रहे तब तो भाई थोड़ा मतलब यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स, बट अगर वंस यू इन द 70 टू 100 वाले रेंज में, तो इट्स लाइक कि
मतलब इट्स लाइक कि यू आर समवेयर इन द राइट डायरेक्शन, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या फिर यूपीएससी के भरोसे रहो, यूपीएससी अच्छा नंबर दे देगा, यही करना है। 40 इज लाइक कि नहीं, यू नीड टू वर्क। अगर मॉक्स में 40, रिटन मॉक्स में 40 आ रहे हैं तो यू नीड टू वर्क। ओके ओके ओके। और जैसे ये आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट है, ये कब स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? प्रेफरेबली आफ्टर सब्जेक्ट इज डन, उसके बाद ही आंसर राइटिंग करिए, अदरवाइज इट इजंट वर्दी, बिकॉज कई बार चीजें ओवरलैप होती हैं, क्या होता है तो आप मिस कर जाते हो उस चीजों में। तो आइडियली आंसर राइटिंग जब आप एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट पेपर कंप्लीट कर लो उसके बाद। ओके, तो मतलब एक बार जब पूरा हमने सिलेबस पढ़ लिया है, उसके बाद वी शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा? You can do that, or like some people also recommend कि let's say modern history पढ़ लेता, modern history क्वेश्चन उठा के कुछ आंसर लिख लो, ये भी कर सकते हो, whichever suits you, again whichever suits you। ओके। एंड जैसे कुछ का रिकमेंडेशन ये भी रहता है कि आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए शुरुआत में, जस्ट टू स्टार्ट एंड गेन मोमेंटम। तो वुड यू रिकमेंड दैट एज वेल? I personally did not follow this, so I'm not really sure if this would be a good idea or not, but अगर कोई credible topper बोल रहा है and then students can try, give it a shot। if अगर उनको लगता है इससे कुछ momentum बन रहा है, बोलते हैं ना inertia टूट रही है, so there's no harm in it। ओके। और जैसे आंसर राइटिंग में आपने बोला कि कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, कुछ एग्जाम्पल स्प्रिंकल करना है, तो ऐसा एक ब्लूप्रिंट आपने अपने दिमाग में बनाया था कि कोई भी आंसर आता है तो इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट से मेरे को फॉलो करके उसको लिखना है? जैसे इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन हो गई, बॉडी में इस टाइप से सब हेडिंग्स एंड ऑल, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट आपने फॉलो किया? हाँ, एक ब्लूप्रिंट मैंने दिमाग में ये बनाया था कि इंट्रोडक्शन इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एक एग्जांपल या फिर एक करंट कंटेक्स्ट। बॉडी में विल बी एड्रेसिंग द की पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कोई डायग्राम हो सकता है वहां पे, वो घुसाना है, फ्लो चार्ट टाइप का। कंक्लूजन में गिव एन ऑप्टिमिस्टिक एंड अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, स्टेटिंग फैक्ट्स एंड स्टेटिंग द ऑब्वियस एंड स्टेटिंग द फैक्ट्स। तो यही एक ब्लूप्रिंट था मेरे दिमाग में। ओके ओके ग्रेट। तो ये ब्लूप्रिंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है कि आप पहले से ही आपने सेट किया हुआ था कि ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन, हर सारे नहीं, क्वेश्चन? ग्रेजुअली बन जाता है। कई बार इनफैक्ट ये ब्लूप्रिंट आप फॉलो नहीं भी कर पाते बिकॉज ऑफ टाइम या फिर बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। So you must be very flexible with it, but generally अधिकतर questions में this blueprint to the whole, and ये gradually आप practice करोगे, लिखना टॉपर्स की कॉपीज पढ़ोगे तो आपको इससे आ जाएगा। ग्रेट। एंड टॉपर्स की जैसे आपने कॉपीज पढ़ी, तो आपने वहाँ टॉपर्स की कॉपीज से अपने आंसर्स में कुछ मटेरियल लिया था कि मतलब यू ट्राई टू गेन समथिंग फ्रॉम देम, कि वो बस बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रेजेंटेशन ही आपने देखा बस? प्रेजेंटेशन भी देखा, कुछ हद तक कंटेंट है, एग्जांपल्स भी देख लिए कैसे वो करना है, तो आई वर्कड ऑन बोथ फ्रंट्स। ओके, सो टॉपर कॉपीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग वेरी एक्चुअली द मेंस प्रिपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो इथिक्स और एसे वाला जो ये पार्ट है, ये कैसे आपने टैकल किया, स्पेशली इथिक्स? सी एथिक्स से ऐसा पेपर है जिसको लिखना है दिल से, थोड़ा सा दिमाग लगा के। आंसर्स मस्ट कम फ्रॉम योर हार्ट, यूज अ लिटिल ब्रेन टू फिल्टर आउट स्टफ। बहुत सारे एग्जांपल्स दो, अगेन टॉपर्स की कॉपीज देखो फॉर केस स्टडीज। कई बार आपको एक चीज ये कर सकते हो, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी किया हुआ, एक पीडीएफ डाला है, मैंने बनाया था, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज होंगे, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, उनके डेफिनेशन एंड कपल ऑफ एग्जांपल्स टाइप का। तो आपको ये सब कर लो। एंड बाकी टॉपर्स कॉपीज देखोगे तो एथिक्स हो जाएगा, shouldn't be much of a bother, trust me। Ethics can also be prepared between the 3 months between pre and mains, so not an issue with that। ओके एथिक्स के लिए वही है कि ऐसे के लिए ये कि आपका कंटेंट दो पार्ट है, कंटेंट एंड योर स्ट्रक्चर। So the content comes from your GS, your optional, and the world around you, your current affairs। The structure is more about the flow, the transition, the interconnectedness। तो यही जब ऐसे आप लिखते हो, यही ट्राई करना है कि डू नॉट सैक्रिफाइस वन फॉर द अदर, मतलब कंटेंट एंड फ्लो में बैलेंस रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। एंड एग्जांपल दो, बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट। वैसे ही ट्राई कवरिंग एज मेनी डायमेंशंस एज पॉसिबल, बट देन एक इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए। तो अगेन टॉपर्स कॉपीज अ वेरी गुड सोर्स, बहुत अच्छे टॉपर्स ने बहुत अच्छे एसेस लिखे हैं, उनके अगर लोग एसेस पढ़ेंगे तो दे विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। ओके ग्रेट ग्रेट। और जैसे अभी आजकल यूपीएससी इज फोकसिंग मोर ऑन फिलोसफिकल पार्ट एज वेल, ऑन एसेस, तो उसके लिए कोई एडिशनल एडवाइस की कैसे उन एसेस को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट समझना बहुत एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि मीन क्या कर रहे बस हैं वो? बस वही है, उसमें फिलोसफिकल एसेस इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ऐसे, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आपसे करवाएगा कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट समझना है बस, nothing more। अगर स्टेटमेंट समझ लिया, योर गेम इज डन। स्ट्रेच इट टू एनी पॉइंट एंड देन कम बैक एंड जस्टिफाई। तो ये नॉर्मल ओके। आपके सोसाइटी वाले एसेस में नहीं होते। तो यस। कन्वेंशनली देखने तो डर लगेगा कि फिलोसफिकल एसेस यार क्या होगा, बट देन अगर आप आइडियली देखो, प्रैक्टिस करोगे, तो फिलोसफिकल एसेस आर रिलेटिवली ऑन द इजियर साइड, बिकॉज़ आपको लिखने को बहुत कुछ मिल जाएगा ग्रेजुअली। तो यही आपको करना है मतलब।
Great. And particularly you scored very high in GS2 paper as well. तो उसके लिए कुछ additional आपने follow किया था कि just the normal routine stuff? नहीं, routine stuff ही था mostly. It was more about presentation, कि writing number articles, court cases, judgments and reports quote कर देना. राजमन्नार हो गया, law commission हो गया, NCRWC हो गया. ये सब बहुत मतलब recommendation, एक forward looking वो type का देना, diagram flowchart बनाना, maps बनाना. So this is something that actually helped me score good in GS2. Okay. And most of the toppers they also recommend कि आप ARC report की recommendations भी quote करिए अपने answers में. So did you like learn all the ARC recommendations कि आपने कुछ और follow किया फिर? नहीं, मैंने ARC के recommendations का एक 2-3 पेज का summary पढ़ा था. कोई कहीं से मिल गया था मुझे. बस वही देखा था. वरना ARC के recommendations बहुत बड़े हैं भाई, उतना कैसे हो पाएगा. बट हाँ, इट्स गुड कि आप ARC और या फिर और ऐसे कमिटीज हो गए जिसके रिकमेंडेशन को आप वो साइड करें अपने आंसर्स में, तो इट विल गिव यू अ गुड वेटेज. मतलब इट्स अ बिग डिफरेंस, राइट? उस बंदे की बात में ज्यादा क्रेडिबिलिटी. दैट्स द थिंग. Great. And moving on to the last part, that is the interview. So interview के लिए what was your strategy? What you did for scoring high in interviews? इंटरव्यू को मोस्टली ये था कि कंटेंट आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स से एंड जो आपने पढ़ा है अपने बुक्स में. And then there are some questions on your personality, on your life, and whatever you have done till date. तो इसके लिए ऐसे जनरली प्रिपेयर करना है. Other than that, what I did was I gave a lot of mocks. मतलब मैं सुबह उठता था, कोचिंग में फोन लाता था कि आज स्लॉट है, और फिर सूट पहन के चले जाता था. मॉक दे के आता था. जब तक वीडियो आएगी, वीडियो को एनालाइज करता था. हाउ कुड आई मेड इट बेटर. Okay. And बस this is something that I did for interviews. Interviews is probably the most fun part of this. वो मतलब you get to meet a lot of people. Couple of them become your very good friends because when they get selected and all. Yeah. तो इंटरव्यू बहुत चिल टाइप का, बट देन डू नॉट टेक इट लाइटली. मतलब इट्स चिल बट इट्स नॉट लाइट. ये सो जो मेन से इंटरव्यू का पीरियड रहता है उसमें करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का कुछ अलग स्ट्रैटेजी रहता है कि यू फॉलोड समथिंग एल्स कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ के उसको हर इशू को एनालाइज करना है डिफरेंट एंगल से, वैसा यू फॉलोड? मोस्टली एनालिसिस वाला पार्ट you get it, you understand when you are in this process of UPSC का prep, right? And current affairs, दो अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ने के. टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर दैट आई वुड पर्सनली रिकमेंड, बिकॉज़ टाइम्स ऑफ इंडिया आप प्री एंड मेंस के लिए आप हिंदू और ये सब पढ़ते हो, बट इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया वुड बी अ गुड न्यूज़पेपर फॉर इंटरव्यूज. एंड यही सब वही से इशू पढ़िए रेगुलरली, एंड देन ग्रेजुअली थोड़ा एनालिसिस दिया होगा, एडिटोरियल्स भी देख सकते हैं, एंड मॉक्स दीजिए as much as possible. Know yourself, know the world around you, know your subjects, ओके. and things will be good एंड for you. जो डैफ होता है आपका उसको अच्छे से एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पैनल पूछते हैं डैफ से आप. बिल्कुल 100%. एंड सो आपने अपने डैफ के लिए मतलब अपने एनालिसिस मतलब खुद का पर्सनल सेल्फ इवैल्यूएशन किया जब आप डैफ भर रहे थे? यू प्रिपेयर्ड समथिंग एडिशनल फॉर दैट कि बस अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करके ही वो हो गया? नहीं, I tried to think logically कि what are the best points I can offer before the panel. Okay. And at the same time I was honest कि ये चीज मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ. तो वही चीजें मैंने भरी, and luckily it clicked for me. Okay, great. That is so great, So Shubham, thank you so much for coming on this platform. And most important, aspirants, they were asking कि अगर आपका where do you share your material? Telegram group, obviously I'll obviously share the link in our Telegram group. I'll send my Telegram link का channel and my Insta का link as well. Yes. तो वहाँ पे mostly होता है, and उस वहीं पे I share most of my stuff. Okay. Stuff, And strategies, whatever. are you also available in Quora? I mean, when aspirants they want to ask questions. No. I'm not on Quora. अभी actually थोड़ा hectic period चल रहा है. Hopefully I'm planning on getting on a couple of more social media platforms या फिर dedicated वहाँ पे जिससे मैं aspirant से directly communicate कर पाऊँ. But फिलहाल थोड़ा hectic चल रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं. So what I'll do is I'll share your Telegram जहाँ पे आप सब कुछ शेयर करते हैं. I think अपना जो भी आपने मटेरियल फॉलो किया and plus गाइडेंस आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे देते ही हैं. So we'll share your Telegram as well and also your Insta link as well. So Shubham, thank you so much for taking your time out. We are so pleased. Thank you for having me over. Definitely. I mean, we are so honored to have you here, and I think this video will definitely help most of our audience who is viewing, and we wish you all the very best for coming years. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice day, Shubham. Bye-bye. Bye.